कि सरकार के एमपी बाहर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और जो विषय तख्ती पर दिखाते हैं उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। They've cut all the internet. What are they doing? They're not terrorists. चर्चा से क्यों भाग रहे हो? नीट पर संवाद करो। Modi ji is responsible for the fact that our youth feels there's no future. नरेंद्र मोदी सरकार की है, वैसा किसी और का ना कभी रहा है ना हो सकता है। And Modi ji is responsible if thousands of children are demonstrating. और सिर्फ चाहते हैं कि जैसे सड़क तंत्र चलता है वैसे देश चले। आपने कभी देखा है इस हमारे लोकतंत्र की पूरी हिस्ट्री में, इतिहास में, कि सरकार के एमपी बाहर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं? और कितने सत्रों से ये चल रहा है, चला ही नहीं पा रहे हैं। बाहर जो हो रहा है देखिए, कमजोर है, एकदम कायर है। What is this? Are we living in a democracy? Think about it. Children are protesting. They're all young. Think about it. They've cut all the internet. What are they doing? They're not terrorists. Their parents will be worried. Their families will be worried. They can't contact anyone. They're putting tear gas on them. They're beating them. What kind of democracy is this? And why aren't you people speaking up? Why aren't you speaking up? Why are you constantly asking me only the questions which the government wants you to ask me? Are you asking them anything? Have you asked the ministers? Have you asked how is the Prime Minister tweeting this morning that he cares for children when last night he's tear gassed them? Last night he's had them beaten up. Who's responsible? He takes credit for going to Mars. He takes credit for every achievement of this nation, which is the achievement of our youth and the achievement of our people. He takes credit, doesn't it? Doesn't he? So now's the time for him to take responsibility. Now is the time for him to take responsibility for his actions. It is him who is getting people beaten up. Under his nose, there are 152 papers have leaked in 10 years. 152 papers have leaked, not one conviction, zero convictions. Zero convictions. Under whose nose? Who's responsible? If Modi ji is responsible for us going to Mars, if Modi ji is responsible for every achievement that every Indian makes, whether it's in the Olympics or in the Asian Games, then Modi ji is responsible for what is happening today. Modi ji is responsible for the fact that our youth feels there's no future. And Modi ji is responsible if thousands of children are demonstrating and he's cut off the internet and he's tear gassing them and he's having them lathi charge. If something happens to even one of them, it is his responsibility. देखिए, विपक्ष राहुल गांधी जी ये लोग बहुत ही गैर जिम्मेदारीपन का परिचय दे रहे हैं। ये लोग तख्ती लेकर के तो आते हैं और जो विषय तख्ती पर दिखाते हैं उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। सोचिए, अगर ये युवाओं के सही में उनके पैरोकार होते तो उनकी समस्याओं को लेकर के सिर्फ तख्ती नहीं दिखाते बल्कि चर्चा को तैयार होते। इसलिए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राज्यसभा सांसद भी हैं, वो उनके साथ हम सभी सांसद आज एक ही मांग कर रहे थे। हमारा एक ही डिमांड था यहाँ खड़ा होकर के कि चर्चा से क्यों भाग रहे हो? आप आओ संसद में संवाद करो, चर्चा से क्यों भाग रहे हो? नीट पर संवाद करो, नीट पर चर्चा करो। और यही बात लेकर के हम खड़े थे। और हम एक सांसद के रूप में भी और एक देश के नागरिक के रूप में भी छात्रों के भविष्य को लेकर के जितनी चिंता और जितनी सतर्कता नरेंद्र मोदी सरकार की है, वैसा किसी और का ना कभी रहा है ना हो सकता है। अभी भी प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट करके देश के सभी युवाओं को और उनसे जुड़े हुए लोगों से कहा है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हम हर वो कदम उठाएंगे जो आवश्यक है। किसी भी युवा के साथ कोई भी नुकसान न हो, हम इसके लिए ये भी तय कर रहे हैं और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले फास्ट ट्रैक के द्वारा, ये भी उन्होंने कहा है। उन्होंने यहां तक कहा है कि बड़े से बड़ा वकील इनमें लगाने पड़े, उसके लिए भी सरकार को और हमारे पार्टी स्तर पर भी हम उसके प्रयास में लगेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रहे कि नीट की परीक्षा वापस हो चुकी है। नीट की 3 मई की परीक्षा का रिजल्ट जितना जल्दी आता उससे पहले री एग्जाम करा करके भी परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। और नीट ही नहीं, जेईई की परीक्षा का
15 लाख बच्चे आए, वो भी हो चुका है। यूवीटी उसका भी परीक्षा का रिजल्ट हो, परीक्षा का हो क्या, 4 परीक्षाओं का, जिसमें कुल मिलाकर 60 लाख से ज्यादा बच्चे भाग लिए, सबका परीक्षा हो चुका है बिना गड़बड़ी के। और मैं एक सांसद के रूप में मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं अपने हर युवा छात्र भाई को कि आप लोग इन राजनीतिक लोगों के बहकावे में न आए। आपका जो भी भविष्य है उसकी चिंता है नरेंद्र मोदी जी करें। सर इसमें लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक चर्चा का कोई मतलब नहीं है। भाई चर्चा तो करिए, आप चर्चा नहीं करेंगे, बातें नहीं होंगी। ये तो संसद है ना, सबसे पवित्र ऑगस्ट हाउस है ये। आप प्रूफ तो करिए कि दोषी कौन है, गलती कहाँ हुई है। आप चर्चा करना ही नहीं चाहते हैं और सिर्फ चाहते हैं कि जैसे सड़क तंत्र चलता है वैसे देश चले, तो संसद तंत्र से देश चलना चाहिए, सड़क तंत्र से नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।